السلام علیکم، خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے سرخیاں۔ بدعنوان سیاسی لیڈر کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دینے چندرا بابو نائیڈو کی تجویز، عوام سے بائیکاٹ کرنے کی اپیل۔ احتجاجی جونیئر ڈاکٹرز کی دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات، مجلسی ارکان اسمبلی کی گاندھی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز سے ملاقات اور اظہار یگانگت۔ رکن کونسل آموس تخمینہ اور مراد کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی، صدرنشین کونسل پر تلنگانہ ارکان کے ساتھ ناانصافیوں کا الزام۔ اور شہر میں قبرستانوں کی قلت، متولیوں کی منمانیاں، کارروائی کرنے کے لیے صدرنشین وقف بورڈ کو تحریری شکایتیں مطلوب۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندرا بابو نائیڈو نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو سیاست کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ وقت موزوں ہے۔ پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ تیلگو دیشم نوجوانوں کو سیاست کی طرف راغب کرنے اور ان میں سیاسی شعور بیدار کرنے کے لیے ریاست بھر میں خصوصی پروگرامز منعقد کرے گی۔ صدر تیلگو دیشم نے بتایا کہ 8 تاریخ کو وشاکھاپٹنم، 10 کو تروپتی اور 11 تاریخ کو حیدرآباد میں نوجوانوں کے لیے شعور بیداری پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تیلگو دیشم پارٹی میں نوجوانوں کی شمولیت کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ صدر تیلگو دیشم نے کہا کہ آج کے بدعنوانی بھرے دور میں نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور ملک کے بہتر مستقبل کے لیے کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ انہوں نے بدعنوانیوں کے خلاف انفرادی طور پر کی جا رہی کوششوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو بھی بدعنوانیوں کے خاتمے کے لیے متحدہ طور پر جد و جہد میں شامل ہونا چاہیے۔ چندرا بابو نائیڈو نے تجویز پیش کی کہ بدعنوانیوں میں ملوث قائد کو انتخابات میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا جائے۔ انہوں نے عوام کو بھی مشورہ دیا کہ ایسے قائد کے انتخابات میں حصہ لینے کی صورت میں وہ اس قائد کو مسترد کر دیں۔ We totally condemn. The reputation of our state has gone very badly. Ultimately, we are fighting against corruption and at the same time against government anti-people policies. Andhra is number 1 now. Illegal drugs, mining mafia, liquor mafia, sand mafia, land grabbing mafia, killings. Even people are settling their accounts, killing each other. All rowdies, all criminals, they are killing others, and also it is a regular activity in Andhra Pradesh. وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کے دورے حیدرآباد کی تنسیق کو لے کر مختلف قسم کی قیاس آرائیاں گشت کر رہی ہیں۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کا پروگرام بھی تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم کے دورے کی منسوخی پر پڑے پردے کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کی کارکردگی پر بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق میٹرو ریل پروجیکٹ کو وزیر اعظم کے دفتر سے منظوری مل چکی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ راجیو یووا کرنالو پروگرام پر بھی وزیر اعظم کے دفتر کی جانب سے تفصیلات حاصل کی جا رہی ہیں۔ صدر پی سی سی بی ستیہ نارائنا نے بھی دلی میں وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں راجیو یووا کرنالو پروگرام سے واقف کروایا۔ تاہم وزیر اعظم کی جانب سے تقریب میں شرکت سے متعلق کوئی تیقن نہیں دیا گیا۔ البتہ اس بات کا تیقن دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم میٹرو ریل پروجیکٹ کے لیے جلد ہی وقت دے سکتے ہیں۔ ادھر چیف منسٹر وزیر اعظم کے دورے کے دوران راجیو یووا کرنالو پروگرام کے تحت ملازمت حاصل کرنے والوں کو وزیر اعظم کے ہاتھوں تقررات ناموں کی حوالگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے۔ ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس سے پہلے اسمبلی کے احاطے میں غیر معمولی سیکورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اسمبلی کے احاطے میں ایس پی ایف کے بشمول 135 پولیس ملازمین کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسمبلی اجلاس کے دوران بینرز اور پوسٹرز کے ساتھ داخل ہونے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی تھی اور اس سلسلے میں نوٹس بھی چسپاں کر دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے چوتھے پریزنز ڈیوٹی میٹ کا افتتاح انجام دیا۔ اس 3 روزہ پریزنز ڈیوٹی میٹ میں قید خانوں کے محکمے سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی حصہ لیں گے۔
इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर दाखिला सविता रेड्डी और वज़ीर क़बायली बहबूद बाल राजू के अलावा महकमे जिंदान के IG गोपीनाथ रेड्डी ने भी शिरकत की। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी को इस मौके पर तहनीयत पेश की गई। मुतालबात की यकसुई के लिए एहतजाज कर रहे जूनियर डॉक्टर्स ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। सदर मजलिस की हिदायत पर मजलिसी अरकान मुक़द्दमा अहमद बलाला, मौज़म खान और अमीनुल हसन जाफरी ने गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर हड़ताली डॉक्टर्स से इजहार यगानगत किया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि सदर मजलिस अवाम को दरपेश मुश्किलात के साथ साथ डॉक्टर्स के मसाइल पर भी मुतफक्किर हैं और उन्होंने इस सिलसिले में मुतल्लिका वज़ीर से भी बात की है। अहमद बलाला ने कहा कि डॉक्टर्स के मुतालबात पर मजलिस उनके साथ है और हुकूमत से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। अहमद बलाला ने डॉक्टर्स के मुतालबात की तायीद करते हुए कहा कि अगर सरकारी दवाखानों में बेहतर सहूलतें फराहम की जाएंगी तो डॉक्टर्स बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर सकेंगे। इस मौके पर रुकने कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल पर हुकूमत का मौक़िफ़ काबिल अफसोस है। उन्होंने हड़ताल की वजह से मरीजों को पेश आ रही मुश्किलात पर भी फिक्रमंदी का इजहार किया। अमीनुल हसन जाफरी ने हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स को हुकूमत की जानिब से बातचीत के लिए मदऊ न किए जाने को भी नामुनासिब करार दिया। जूनियर डॉक्टर्स ने मजलिसी क़ायदीन के दौरे पर मसरत का इजहार करते हुए सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया। जो चीज इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने की बजाय डॉक्टर्स के ऊपर एस्मा लगाने के जो स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट दे रही है, जो मुजरिमाना हरकत गवर्नमेंट कर रही है, के बजाय उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे ताकि डॉक्टर्स अच्छे से अच्छी खिदमत कर सके। आप शाइनिंग इंडिया की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर्स जो लोगों की जान बचाते हैं उनके लिए आप जो सो नए बुक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो कहां से इंडिया शाइन करेगा। मैं हमारी पार्टी की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आप तमाम को यही कहने आया हूं कि उन्होंने खास तौर पर इमीडिएट हमारा डेलीगेशन हमारे तमाम MLAs को, 3 MLAs को, MLC को आपके पास भेजे कि वो गवर्नमेंट से बात करेंगे एंड ही विल सी दैट योर प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने कौंसल आमोस ने कौंसल की तखमीना और मुराद कमेटी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए आमोस ने कहा कि कौंसल के सदरनशीन चक्रपानी तेलंगाना कौंसल अरकान के साथ मुसलसल नाइंसाफियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रायलसीमा और आंध्रा के कायदीन को बड़े बड़े ओहदे दिए जा रहे हैं जबकि तेलंगाना के सीनियर कांग्रेसी कायदीन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया है। आमोस ने इल्जाम लगाया कि सदरनशीन कौंसल चक्रपानी चीफ मिनिस्टर को भी कमेटी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि चीफ मिनिस्टर का इस कमेटी में कोई दखल नहीं है। दीगर सीनियर अरकान के मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर आमोस ने कहा कि तमाम सीनियर कायदीन को भी कई शिकायतें हैं लेकिन वो क्या फैसला लेते हैं इसका उन्हें पता नहीं। ఇంతకు ముందు పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళని మళ్ళీ ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చైర్మన్లు చేయడమో లేదంటే జాయింట్ కమిటీలలో వాళ్ళని కంటిన్యూ చేయడమో ఇటువంటివన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి। దీన్ని బట్టి మెంబర్స్, కౌన్సిల్ మెంబర్స్ అంటే కావాల్సుకొని ఇన్సల్ట్ చేయడం, డిగ్రేడ్ చేయడం అనే పద్ధతిలో सियासी हलकों में इन दिनों वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और YSR कांग्रेस के सरबराह YS जगन मोहन रेड्डी की इम्कानी मुलाकात की क़ियासाराइयां गश्त कर रही हैं। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस लीडर M पापैया के दुख्तर और जगन के हामी रुकन असम्बली धर्मना कृष्णा दास के फर्जंद की शादी विशाखापट्टनम में मुकर्रर है। शादी की तकरीब में चीफ मिनिस्टर और जगन की शिरकत यकीनी बताई जा रही है लेकिन कहा जाता है कि कांग्रेस के बाज़ कायदीन चीफ मिनिस्टर को शादी की तकरीब में शिरकत न करने का मशवरा दे रहे हैं। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे के साथ 15 फरवरी को उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में विद्यार्थी गरजना का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। चारशंबे को उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस में इस प्रोग्राम के पोस्टर्स की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। सदरनशीन सियासी JAC कोदंडाराम ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने के मकसद से
मार्च की 27 तारीख को जंतर मंतर पर एक रोजा भूख हड़ताल की जाएगी। कोदंडराम ने बताया कि तेलंगाना में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान तेलंगाना के लिए मुस्तफी होने वाले अवामी नुमाइंदों की ताईद में बस यात्रा भी निकाली जाएगी। कोदंडराम ने कांग्रेस पार्टी के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर तनकीद करते हुए कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस का मौक़िफ़ ही सबसे बड़ी रुकावट है। ग्रेट हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन ने चारशंबे के दिन अंबरपेट और अनमस्तपुरे के मसालिख का स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और मुताल्लिका कॉरपोरेटर के हमराह मुआयना किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद माजिद हुसैन ने कहा कि अंबरपेट मसलख के काम मार्च के ख़त्म तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रनमस्तपुरे में तामीरी काम सुस्त रफ्तारी से जारी हैं। वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई की उन्होंने कमिश्नर बल्दिया को हिदायत दी। मेयर ने शहर की एक बड़ी 5 स्टार होटल से 50 लाख रुपए टैक्स वसूल करने वाले बलदी ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। अंबरपेट स्लॉटर हाउस में तकरीबन और बाई मार्च एंड हमें वो फुल फंक्शनिंग में मिल जाएगा। रमनसपुरा स्लॉटर हाउस में बहुत सा काम बाकी है और वहाँ पे बहुत स्लो पेस में काम हो रहा है। वहाँ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बारे में के ऊपर नेसेसरी एक्शन की मैंने हिदायत दी है, क्योंकि वहाँ पे पूरे हॉलो ब्रिक्स यूज़ हो रहे हैं। जो बीम्स जो स्लॉटर हाउस के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो बीम का वजन को संभालने में नाकामयाब हो सकते हैं वो हॉलो ब्रिक्स। तो उसके बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे फ़ौरन एक्शन लेने की और ये दोनों स्लॉटर हाउस पे काम में तेज़ी लाने की हिदायत दी गई है। सीबीआई ने एमआर प्रॉपर्टीज केस के सिलसिले में चारशंबे को चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण ने बताया कि चार्जशीट में बीपी आचार्य, कोनेरू प्रसाद, कोनेरू मधु, विश्वेश्वर राव, श्रवण गुप्ता, मोहम्मद अली अकबर और एलवी सुब्रमण्यम के नाम शामिल हैं। लक्ष्मी नारायण ने बताया कि एमआर प्रॉपर्टीज केस की तहकीकात के दौरान 270 अफराद से पूछताछ की गई और 2300 दस्तावेजात की जांच की गई। टीआरएस ने अंबेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन के वाकयात पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के एससी लीडर मुर्दुलू ने कहा कि अंबेडकर की मुजस्सिमों की तौहीन पर दलित वज़रा की खामोशी बायस अफसोस है। उन्होंने दलित वज़रा से फौरी इस्तीफा दे देने का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती वज़ीर दाखिला सिर्फ बराए नाम है, जबकि महकमे दाखिला को चीफ सेक्रेटरी चला रहे हैं। रुकन असेंबली अहमद बलाना ने मलकपेट में बाग़े जहांआरा और गुड्डी बौली के इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बरखी, आबरसानी और ड्रेनेज के नए कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उनके हमरा मकामी रुकन बलदिया छावनी डिवीजन मोहम्मद मुर्तज़ा अली और मकामी इब्तदाई सदूर और मुतमदीन मौजूद थे। इंटरमीडिएट के सालाना प्रैक्टिकल इम्तिहानात का 3 फरवरी को आगाज होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात के लिए 2708 मराकज़ कायम किए गए हैं। इन इम्तिहानात में आम ज़ुमरे में 4,85,356 और वोकेशनल इम्तिहानात के ज़ुमरे में 1,48,215 तलबा शिरकत करेंगे। ये इम्तिहानात 25 फरवरी तक जारी रहेंगे। इम्तिहानात के सुबह के औकात 9 बजे से दिन में 12 बजे और दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे तक रखे गए हैं। 5 फरवरी को मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, 19 फरवरी को वीआरओ के इम्तिहानात हैं और 20 फरवरी को शिवरात्रि है, जिसकी वजह से इम्तिहानात इन दिनों में नहीं होंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के ज़राए ने बताया कि तलबा के हॉल टिकट्स और बैच नंबर्स रवाना कर दिए गए हैं। तलबा को बैच तब्दील करने की इजाज़त नहीं रहेगी। तेलुगु देशम पार्टी कायदीन ने चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ सदर पीसीसी के रिमार्क्स की सख्त मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम कायदीन एस वेंकटैया वीरैया और श्रीनिवास राव ने कहा कि सदर पीसीसी शराब माफिया के डॉन है और उनकी हैसियत इतनी नहीं है कि वो चंद्रबाबू नायडू पर रिमार्क्स करें। तेलुगु देशम कायदीन ने कहा कि बी सत्यनारायण की जितनी सियासी जिंदगी है, उससे कहीं ज्यादा चंद्रबाबू नायडू को सियासी तजुर्बा हासिल है। इन कायदीन ने सदर पीसीसी को अपने बयानात से बाज आ जाने का मशवरा दिया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम से गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी की दूरी के असबाब से बीजेपी के अहम कौमी लीडर वेंकैया नायडू भी वाकिफ नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान वेंकैया नायडू से जब इस बारे में पूछा गया
तो वो कुछ न कह सके। वेंकैया नायडू ने रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हुकूमत नाअहली के सबूत दे रही है। वज़रा और चीफ मिनिस्टर में किसी किस्म का कोई तालमेल नहीं है। हुकूमत की जानिब से ऐलानात तो किए जा रहे हैं, लेकिन किसी ऐलान पर अमल आवारी नहीं के बराबर है। वेंकैया नायडू ने कहा कि रियासत में हर रोज धरने, एहतजाजी रैलियां और हड़तालें की जा रही हैं, लेकिन हुकूमत किसी भी मसले से निमटने में संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत में अंबेडकर के मुजस्सिमों की तौहीन का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकूमत इससे भी निमटने में नाकाम है। वेंकैया नायडू ने कहा कि युवा करनालू के नाम पर नौजवानों को गुमराह किया गया है। उन्होंने वज़ीर आज़म के दौरे के इल्तिवा पर हुकूमत से वज़ाहत करने का मुतालबा किया। स्पीकर असेंबली को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी कायद ने कहा कि स्पीकर दस्तूर की खिलाफ वर्जी करते हुए अहम फैसलों को ताअत्तुल से दो चार कर चुके हैं। उन्होंने एसीबी की जानिब से शराब सिंडिकेट के खिलाफ किए गए दावों की तफसीलात को भी अवाम के सामने लाने का मुतालबा किया। सदरनशीन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कबूर की जगह देने के लिए जिन कब्रिस्तानों के जिम्मेदार और मुतवल्ली हजरात खतीर रकम बटोर रहे हैं, उनके खिलाफ तहरीरी शिकायत मौसूल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पेश है तफसीली रिपोर्ट। हैदराबाद के कई कब्रिस्तानों में कमेटियों के जिम्मेदार अफराद शहर में कबूर के लिए जगह की कमी का जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। हैदराबाद में 100 से ज्यादा छोटे बड़े कब्रिस्तान हैं, जिनमें से 80% कब्रिस्तानों का वक्फ बोर्ड में इंदराज भी है। इसके बावजूद ना ही वक्फ बोर्ड की जानिब से खबरों की फराहमी के लिए कोई नज्म किया गया है और ना ही कब्रिस्तानों की कमेटी के जिम्मेदारों और मुतवल्ली हजरात के लिए रहनुमायाना खतूत वज़े किए गए हैं। शहर के बाज़ बड़े कब्रिस्तानों में 2 गज जमीन की फराहमी के लिए 1 लाख रुपए भी वसूल किए जाने की इतलात है, जबकि ज्यादातर कब्रिस्तान ऐसे हैं जहां पर 30 ता 50 हजार रुपए वसूल करते हुए खबर के लिए जगह दी जा रही है। जगह की कमी को बहाना बनाते हुए मुतवल्ली हजरात खबर के लिए मनमानी रकम ऐंठ रहे हैं। जहां साहिब सुरूत हजरात अपने आबाई कब्रिस्तानों में पहले से ही खतीर रकम देकर अपनी जगह महफूज करवा रहे हैं, तो वहीं गरीब अफराद की मैयतों के लिए कब्रिस्तानों में नो वैकेंसी का बोर्ड भी लगा दिया गया है। शहर की आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से शहर में कब्रिस्तानों का काल पड़ा हुआ है। ताहम इसका यह मतलब नहीं कि मौजूदा कब्रिस्तानों के जिम्मेदार इस सूरत हाल का नाजायज फायदा उठाएं और मनमानी करें। इस सिलसिले में जब सदरनशीन वक्फ बोर्ड मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा से दरियाफ्त किया गया, तो उन्होंने इस हकीकत का एतराफ तो किया, मगर कहा कि उन्हें सिर्फ जबानी शिकायतें मौसूल हो रही हैं। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अराजी के लिए हमारे वक्त में वो भी है कि आमदनी तस्फीन अमवात है हमारे पास। कब्रिस्तान की मेंटेनेंस के वास्ते, देखभाल के वास्ते अगर 2-4 हज़ार रुपये कोई ले रहा है तो मैं समझता हूँ कोई बुरा नहीं है। उसके बजाय 1,50,000 1.5 लाख इस तरीके से अगर वसूल किया जा रहा है वो गलत है। किसी को दिए सो प्रूफ या रसीद के आगे बोलना उसके बिल अरे भाई दो लोग इतने सारे पूछे खादी पेट में पूछे आप बोलो सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि अगर उन्हें इस सिलसिले में तहरीरी शिकायत दी जाएगी तो वो कब्रिस्तानों के मुतवल्ली और जिम्मेदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे। रुकन असेंबली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने अलीआबाद में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कहा कि उम्मत मुस्लिमा को जो अल्लाह ताला ने बेहतरीन उम्मत करार दिया है, ये सब कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में है। दीगर उम्मतों के मुकाबले में इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ की हैं। ये जलसा अलीआबाद प्ले ग्राउंड पर मुनक़िद हुआ, जिसका एहतमाम सदर इब्तदाई मजलिस अलीआबाद मोहम्मद ज़ियाउल हक़ और मोतमद मोहम्मद साजिद ने किया था। जलसे से मौलाना औलिया हुसैनी और दूसरों ने भी खिताब किया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस में 6 तलबा ने भूख हड़ताल का एहतमाम किया, जिसकी तायीद दूसरे 3 कॉलेजेस के तलबा कर रहे हैं। एहतजाजी तलबा ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि वो HO और HEO जायदादों पर तकर्रुआत के लिए GO जारी करे। पुलिस अब हथकड़ी का इस्तेमाल चोरों को पकड़ने या जकड़ने के लिए नहीं, बल्कि खुद की हिफाजत के लिए कर रही है। छतरीनाका पुलिस स्टेशन की गेट पर लगी हथकड़ी कई सवालात खड़े कर रही है। हथकड़ी
हथकड़ी का लफ्ज जब कभी जहन में आता है या सुनाई देता है या फिर जब कभी हथकड़ी दिखाई देती है तो फौरी खौफनाक चेहरे सामने आ जाते हैं। क्योंकि ये सरकारी कंगन ऐसे अफराद को पहनाए जाते हैं जो खतरनाक जराइम में मुलविस रहे हों, या ऐसे मुजरिमों को ये जेवर पहनाया जाता है जो इंसानियत की सरहदों को तोड़ते हुए हैवानियत के दायरे में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन 4 टीवी की टीम ने ये सरकारी कंगन छतरी नाका पुलिस स्टेशन के बाबुल दाखिला पर सजे हुए देखा, जिसे देखकर इब्तिदा में तो हैरत हुई, लेकिन जब छतरी नाका पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आने वाले जराइम, गैर कानूनी व गैर अखलाकी सरगर्मियों, राउडी शीटर्स की सरगर्मियों, गरीब और मजलूम अवाम की बेबसी का जायजा लिया गया तो पता चला ये बाबुल दाखिला इसी लायक है और इसे ऐसे ही कंगन पहनाने की जरूरत है। क्योंकि चंद रोज कबल पुलिस स्टेशन की दीवार से लगे हुए एक डब्बे को रात के वक्त जला दिया गया, जो एक गरीब और माजूर शख्स के गुजर बसर का जरिया था। पंचर जोड़ते हुए और गाड़ियों में हवा भरते हुए इस माजूर शख्स ने 35 साल इसी मुकाम पर गुजार दिए, और जब अशरार ने इसकी कमाई के इस जरिए को जला दिया तो दीवार की दूसरी तरफ बैठी पुलिस को पता भी ना चला। इस पुलिस स्टेशन के हुदूद में गुड़म्बे और शराब के कई अड्डे मौजूद हैं। यहाँ आवाम पर जुल्म सितम रोज का मामूल है। लोग इस कदर खौफजदा हैं कि पुलिस में शिकायत भी नहीं करते। तो ऐसे पुलिस स्टेशन को जिसने भी हथकड़ी पहनाई है उसे फूल जरूर पहनाना चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही हर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस जिम्मेदारों और कमेटी के मेंबर्स को मदऊ करते हुए मीटिंग्स मुनक्किद करती है और मकामी अफराद से मशवरे भी लेती है ताकि जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर कोई बदनज़मी पैदा न हो। इसी तरह की एक मीटिंग आसिफ नगर में भी मुनक्किद की गई, जहां बाज ओहदेदार मीटिंग के दौरान सोते हुए दिखाई दिए। क्या ऐसे ओहदेदार लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए मौजू हैं? क्या ऐसे ओहदेदार जिम्मेदार कहलाए जा सकते हैं? हुकूमत और आला हुक्काम को इस बारे में सोचने की जरूरत है कि आया ये लोग इन मनसबों के लिए कितने मौजू हैं। ओवैसीपुरा वाक़ई हुमायूं नगर में एक ऑटो रिक्शा का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि ऑटो रिक्शा के मालिक कादिर ने उसे फाइनेंस के जरिए खरीदा था और फाइनेंस की रकम अदा किए सिर्फ 1 महीने ही गुजरा था कि ऑटो रिक्शा चोरी हो गया। इस सिलसिले में हुमायूं नगर पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। अलवाल के रेतु बाजार में ठोक तरकारी फरोख्त करने वाले किसानों ने ग्राहकों को रास्त तरकारी फरोख्त करने के लिए एहतजाज किया। एहतजाजी किसानों का कहना है कि दलाल उनसे तरकारी सस्ते दामों पर खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि उन्हें सिर्फ मामूली नफा हासिल हो रहा है। रेतु बाजार के जिम्मेदारों ने उन्हें इस वाक़े की तहकीकात करने का तयक़ुन दिया। एलबी नगर पुलिस को कचरे की कुंडी में एक नौमौलूद लड़के की लाश दस्तयाब हुई है। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान हैं। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी दवाखाने मुंतकिल कर दिया और दवाखाने के रिकॉर्ड से उसके वालिदैन का पता चलाने की कोशिश कर रही है। क्रीक साइड इंटरनेशनल स्कूल की जानिब से इस्लामी नजरियात की रोशनी में असरी तालीम की अहमियत के उन्वान के तहत एक नशिस्त का एहतमाम 2 फरवरी बरोज जुमेरात शाम 7:30 बजे रूप गार्डन फंक्शन हॉल रिंग रोड पिलर नंबर 63 के पास किया जा रहा है,
جس کی صدارت مولانا رابع حسنی ندوی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کریں گے۔ بنگلور کے نامور عالم دین خالد بیگ ندوی کا خصوصی خطاب اور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگا۔ اس کے علاوہ 3 فروری کو صبح 10:30 بجے مولانا رابع حسنی ندوی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کریک سائیڈ اسکول واقع عزیز باغ حمایت نگر میں منعقدہ ایک پروگرام میں شرکت کریں گے۔ اس پروگرام میں نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے اسکول کی CD کی رسم اجرا انجام دیں گے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ بدعنوان سیاسی لیڈر کو انتخابات کے لیے نااہل قرار دینے چندرا بابو نائیڈو کی تجویز، عوام کو ایسے قائدین کے بائیکاٹ کا مشورہ۔ احتجاجی جونیئر ڈاکٹرز کی دارالسلام میں صدر مجلس سے ملاقات، مجلسی ارکان اسمبلی کی گاندھی ہاسپٹل میں احتجاجی ڈاکٹر سے ملاقات اور اظہار یگانگت۔ رکن کونسل آموس تخمینہ اور مراد کمیٹی کی رکنیت سے مستعفی، صدر نشین کونسل پر تلنگانہ ارکان کے ساتھ ناانصافیوں کا الزام۔ اور شہر میں قبرستانوں کی قلت، متولیوں کی منمانیاں، کارروائی کرنے کے لیے صدر نشین وقف بورڈ کو تحریری شکایتیں مطلوب۔ اسی کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔